Hello students, today in this lecture we will again discuss Gauss law and how to use Gauss law to calculate the electric field due to any type of charge distribution. Okay, students, we will discuss this concept via derivations. Okay, so take a careful look. Fine. Since I am starting up with the electric field due to line charge distribution. Okay. Now since for it we will suppose that the charge, let us suppose say positive charge, the charge is uniformly distributed along the straight line. Okay. The charge is uniformly distributed along the straight line. That is, its linear density is uniform throughout the distribution. Got it, friends? Moreover, we are going to consider the infinitely long straight line over which the positive charge is uniformly distributed, and then we are going to calculate its electric field at a given point. Okay, is it clear? Now the next thing, now says whenever we are having the infinitely long charge distribution and we want to calculate its electric field, then says keep one thing in mind, that we are going to consider one of its section which is comparatively the smallest, or say the smaller section, and we are going to calculate the electric field, okay, on the charge which is present on that section. This electric field is same for the section or the infinitely long charge distribution. Got it, sirs? Okay. Now first of all, I am making the figure, I am giving you the description. First of all, note it down, then I will write that out. Okay? Okay. Let us suppose that let us suppose the positive charge is uniformly distributed. The positive charge is uniformly distributed over the straight line. Got it, sirs? Okay. Then, sirs, what we are going to do? We are going to take or consider the section, this much section, or this infinitely long charge distribution. Now, sirs, let us suppose that we are considering the section AB of this infinitely long charge distribution. Okay, clear? And the charge which is present on this section AB, let us suppose say that charge is say plus Q. Plus Q is the charge present on the section. And since we are enclosing this section by the cylindrical Gaussian surface, which will be our primary step. Remember, whenever you have to calculate the electric field due to any charge distribution at any point, then the first thing, we have to make the enclosure of the given charge, or at least the section of the charge distribution, such that the Gaussian surface
it encloses the charge symmetrically first of all. Why symmetrically? Because since we have to do the calculation, and for making our calculation simplest, since always use those Gaussian surface which have the regular shape, and moreover they encloses the charge symmetrically. Got it, students? बेटा इतनी बात समझ आ गई. Second thing, the observation point should be present on the surface of this Gaussian surface, or the observation point should be present on the Gaussian surface. Now let us suppose that I want to calculate the electric field at this observation point. I am calling this point as, say, the point C. Got it, sense? Now the next step will be you have to mark the direction of the electric field due to the charge distribution, or at least you have to mark the direction of the electric field due to the charge distribution at the observation point. Fine, sense? Now for making a clear explanation or for a better clarity, I am marking the direction of the electric field due to this entire linear charge distribution. Okay? Now, as the charge distribution is linear and the charge is uniformly distributed, moreover, the line charge distribution is infinitely long. So, the pattern of the electric lines of forces, how it will be? Since it will be somewhat since the pattern of the electric lines of forces it will be somewhat like this. Got it, sense? बात समझ आ गई? बेटा ध्यान से रखें, it is negative infinity and it is positive infinity. Negative infinity and positive infinity. Got it? Now, sirs, बेटा ये बात समझ आ गई, second step clear हो गया. Now, in the next step, I will mark the area element at the observation point. Then, the area vector of the marked area element and the electric field at the area element. Okay. Now, suppose the observation point is C, which is present on the curved surface of the cylindrical Gaussian surface, and it is, say, the area element whose area is supposed to be ds. Now, since the area vector of this area element is, say, vector ds, okay, the direction of the electric field, let us suppose, say, it is vector E. Got it, students? And the distance of this observation point, चलिए मैं इसको एक डार्क लाइन ड्रॉ कर देता हूं. The distance of this observation point from the line charge distribution, let us suppose it is small r. Got it, students? So, since this small r will also be the radius of the cylindrical Gaussian surface, okay, and this length AB, चलिए मैं पॉइंट A थोड़ा ऊपर मार्क कर देता हूं. यहां पर, चलिए यहां पर मार्क नहीं करते, स्टूडेंट्स यहां पर मार्क कर देते, पॉइंट B को थोड़ा ऊपर मार्क कर लेते हैं, यहां पर कहीं मार्क कर लेते हैं. ठीक है? Now let us suppose small l be the
small l be the small l be the length of the straight line. Small l be the length of the straight line AB, or the length of the section over which the charge plus Q is uniformly distributed. Okay? We are just considering the charge which is distributed only on the section AB. We are not considering the entire charge on the infinitely long charge distribution. Okay? Is it clear to you? Now, sirs, first of all, you have to copy this figure. Yes, sir, it's done. Done? Now, so it's note down the consideration. I am giving you the consideration, I am dictating it. Okay? Start. Consider the infinitely long straight line over which the positive charge is uniformly distributed. Full stop. Consider the section AB of length small l of this infinitely long charge distribution. Full stop. Imagine the cylindrical Gaussian surface of length L and radius small r, which encloses the charge distribution, चलिए charge distribution रहने दे, which encloses the charge plus Q on the section AB. Full stop. Let vector E be the electric field at the point C, which lies on the curved surface of the cylindrical Gaussian surface. Full stop. Let vector ds be the area vector of the area element at the point C. Fine. Okay. बेटा next line में लिखें, let d phi be the small flux through the area element. ओके या फिर रुकिए, एक काम करिए, ये let d phi be the small flux through the area element इसको काट देंगे. ऐसा करते हैं सर, हम पार्ट्स में फ्लक्स की कैलकुलेशंस करते हैं. ओके, बात समझ आ गई? आप ऐसा करिए, लिखिए आप let phi 1 comma phi 2 and phi 3 be the electric flux through the left face comma right face and the curved surface of the cylindrical Gaussian surface. बात समझ आ गई? अब बेटा मैं एरिया वेक्टर्स मार्क कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है पार्ट्स में. हमने बोला कि phi 1 will be the flux through the this face. ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर एरिया वेक्टर मार्क करना पड़ेगा.
let us suppose this that the area vector which we are marking, it is suppose say vector A1. Okay students, clear? बेटा ये तो लेफ्ट वाला फेस है, इस लेफ्ट वाले फेस का जो एरिया वेक्टर है that is suppose से वेक्टर A1, इसको हाईलाइट कर लें. क्लियर? बेटा हमने बोला कि phi2 is the flux through this right face. तो बेटा राइट फेस का एरिया वेक्टर फिर से मार्क करना पड़ेगा, हाईलाइट कर लें. लेट अस सपोज से इट इज A2 वेक्टर. बात समझ आ गई? अब क्लियरली स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड. एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, so since this angle it will be equals to say 90 degrees. Okay, again the same thing over here, the direction of the electric field, the angle between the electric field vector and the area vector is again 90 degree. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? Now sirs, the calculations. Say phi1 is the flux through the left face. तो सिर्फ जब लेफ्ट फेस का फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एज द लेफ्ट फेस इज द सर्कुलर फेस, पहली बात. दूसरी बात, इट इज द फ्लैट सरफेस. ओके, तो फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर E डॉट वेक्टर A यूज करेंगे. ठीक है? नाउ दिस phi1 is written as say वेक्टर E डॉट वेक्टर A1. Vector E dot vector A1. Got it, friends? This phi1 is written as say E into say A1 into say cos of 90 degrees. Why 90? Because the angle between the direction of the electric field and the area vector, it is 90 degrees. Now cos 90, it is 0. So as the phi1 is 0. Let us call this as equation number first. Got it, friends? Note it down. Note it down. Yes, so it's done. Now we are going to calculate the flux phi2. The flux phi2 is the flux through the right face. Say so it's again. This phi2 is written as vector E dot vector A2. Vector E is the direction of the electric field. Vector A2 is the area vector. The angle clearly is 90 degree. So again, the flux phi2 is written as E into say A2 into say cos of 90 degree. Cos 90 is again 0. So since the flux phi2 is equals to 0. Let us call this as the equation number second. Got it, sirs? Again, note it down. Yes, so it's done. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. अब बेटा हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है गॉसियन सरफेस का. ओके बेटा, लेफ्ट फेस का कैलकुलेट कर लिया, राइट फेस का कैलकुलेट कर लिया. अब बारी आ गई कर्व सरफेस की. तो स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, लास्ट लेक्चर्स में मैंने सिखाया था आपको. सबसे पहले एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं, एरिया वेक्टर मार्क करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करते हैं, फिर पहले स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करते हैं,
फिर इंटीग्रेट करते हैं अलोंग द कर्व सरफेस, नॉट अलोंग द कर्व, नॉट अलोंग द कंप्लीट क्लोज सरफेस। क्लोज इंटीग्रल नहीं लेना है, क्योंकि हम पार्ट्स में सॉल्व कर चुके हैं। यहां पे हम पार्ट्स में सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट फेस का निकल गया, राइट फेस का निकल गया, तो क्लोज इंटीग्रल नहीं लेंगे। फ्लक्स निकालना है सिर्फ कर्व सरफेस से, तो फ्लक्स निकालना है कर्व सरफेस से, तो स्मॉल फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, फॉर द कर्व सरफेस ओनली। ओके, लिखिए बेटा, लिखिए let d phi be the small electric flux through the area element considered at the point C on the curved surface। तो स्टूडेंट्स पहले स्मॉल फ्लक्स की बात करते हैं। से d phi is the small flux, it is written as say vector E dot vector ds। Clear? Now clearly vector ds and vector E, both of them they are in the same direction, so since this d phi can be written as E multiplied with ds multiplied with cos of 0 degrees। बेटा बात समझ आ गई? ओके, इतना काम क्लियर हो गया। Now since cos 0 सबको पता है 1 होता है, so we are left with E into ds। Clear? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए बेटा, E into ds तक पहुंच गए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, अब कैसे करेंगे? अब स्टूडेंट्स हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। क्लियर? बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए, ऑपरेटर है ds। ds क्या था? ds was the area of the एरिया एलिमेंट एट द पॉइंट C। तो बेटा जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो अननोन है, कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले जाएंगे, बचेगा सिर्फ इंटीग्रल ऑफ ds। इंटीग्रल ऑफ ds का मतलब क्या हुआ कि बेटा कर्व सरफेस पे जितने भी एरिया एलिमेंट्स आपने कंसिडर किए, सबका एरिया आपने ऐड करना है, मतलब आपको मिलेगा कर्व सरफेस एरिया। बात समझ आ गई? अब ऐसा करें, नेक्स्ट लाइन में लिखें लेट phi 3 की तो बात हो गई थी। आप ऐसा करिए, जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूं वो करें। सो phi 3 वाज द फ्लक्स, मैंने लिखवा दिया था स्टूडेंट्स कि phi 3 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस और द कर्व पार्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस। सो दिस phi 3 इज रिटन एज इंटीग्रल ऑफ d phi। क्लियर? मतलब स्टूडेंट्स दिस phi 3 is written as integral of E into ds। phi 3 is written as बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर, इंटीग्रल ऑफ ds। इंटीग्रल ऑफ ds क्या देगा आपको? कर्व सरफेस एरिया। अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है सर? तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 pi r l। तो यहां तक मिल गया स्टूडेंट्स हमें फ्लक्स phi 3। बात समझ आ गई बेटा? इतना काम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, पहले नोट कर लें आप इसको, पहले ये नोट करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। Yes, students, done. Next line में लिखे बेटा, let phi be the electric flux through the Gaussian surface। ओके, अब बड़े ध्यान से देखिए। अब बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। बेटा phi क्या है? phi is the total electric flux through the Gaussian surface। अब पार्ट्स में हमने सॉल्व कर लिया था, फ्लक्स होता है स्केलर क्वांटिटी, तो जितने भी फ्लक्स हमने कैलकुलेट किए हैं, लेफ्ट फेस से कैलकुलेट किया था, राइट फेस से कैलकुलेट किया था, कर्व सरफेस से कैलकुलेट किया था, सबको उठाकर ऐड कर देंगे। ठीक है, दिस फ्लक्स phi can be written as say phi 1 plus say phi 2
plus say phi 3. So this flux phi is written as 0 plus 0 plus say E multiplied with 2 pi r L. So since this flux phi is written as say E multiplied with 2 pi r L. बेटा ये बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में. समझ आ गई बात? बेटा ये जो एक्सप्रेशन आ गया ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में. ओके क्लियर? अब ध्यान से सुनिए क्या करना है. ऐसा करिए पहले आप इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 बोल दें. लेट अस सपोज दैट इज इक्वेशन नंबर 4. ओके अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? वी आर गोइंग टू यूज गॉस लॉ. ठीक है? ओके गॉस लॉ क्या था? क्या स्टूडेंट्स कोई भी गॉसियन सरफेस है जिसने चार्ज एनक्लोज किया, फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस इट विल बी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. अब इस वाले केस में स्टूडेंट्स किसी मीडियम की तो बात हुई नहीं थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ एयर. ओके क्लियर? सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस विल बी चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है? अब ध्यान से देखिए, हमने मान लिया था कि स्टूडेंट्स प्लस क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. मतलब सेक्शन ए बी पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है. क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखें आप यूजिंग गॉस लॉ ऐसे लिखें फ्लक्स y इज इक्वल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. बात समझ आई? इसके बाद अब चार्ज एनक्लोज्ड ध्यान से देखिए, चार्ज एनक्लोज्ड ध्यान से देखिए, इट इज से Q. ओके क्लियर? अब बड़े ध्यान से सुनिए. स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में बोला गया था कि बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द स्ट्रेट लाइन. ठीक है? तो स्टूडेंट्स यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखें, एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, लिखें आप. लेट लैम्डा be the uniform linear charge density of the charge distribution. So students, this lambda it will be written as charge density. क्या होगा बेटा? linear charge density है तो charge divided by length. The charge distributed on the length L is plus Q. बात समझ आ गई? This implies that this Q is written as say lambda multiplied with L. बात समझ आ गई यहां तक? ओके तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि बेटा चार्ज एनक्लोज्ड इज रिटन एज say lambda multiplied with L. Okay, so since the electric flux through the Gaussian surface according to Gauss law it can be written as Q enclosed की जगह पे पहले आपने Q डाला. ठीक है? टोटल में निकल करके आ गया lambda. So the flux y is written as say lambda L divided by epsilon. सिंपल सी बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स लेट अस सपोज से इट इज द इक्वेशन नंबर 5. बेटा इसको इक्वेशन नंबर 5 कर रहे हैं. डन? ओके नेक्स्ट लाइन में लिखिए कंपेयरिंग. चलिए कंपेयरिंग को बाद में देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. तो स्टूडेंट्स जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तो पहले हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, जो हमने इक्वेशन नंबर 4 तक किया है. स्टार्टिंग से इक्वेशन नंबर 4 तक जो किया है हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में. बात समझ आ गई? फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमें गॉस लॉ यूज करके
फ्लक्स को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। ओके, जो हमने इक्वेशन नंबर 4 के बाद इक्वेशन नंबर 5 तक किया। यहां तक क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट्स हम इन दोनों कैलकुलेटेड फ्लक्स की वैल्यूज को इक्वेट करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा चार्ज एनक्लोज्ड की टर्म्स में। ठीक है, बात समझ आ गई? आप ऐसा करिए, जल्दी से इसको कॉपी करिए, फिर मैं आगे करता हूं। डन? नाउ नेक्स्ट लाइन में अब लिखें, कंपेयरिंग द इक्वेशन 4th विद द इक्वेशन नंबर 5th वी गेट। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। देखिए क्या मिलता है। स्टूडेंट्स वी गेट this electric field E multiplied with 2 pi r L, it is equals to say lambda multiplied with L divided by epsilon naught। बेटा बात समझ आ गई? Now since this L is cancelled out, so this electric field is written as say lambda divided by 2 pi r मल्टीप्लाइड विद एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, इट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज स्मॉल आर। अब ध्यान से एक और बात देखिए, स्टूडेंट्स लैम्डा तो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी था, मतलब कांस्टेंट है। 2 पाई नंबर हो गया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी था एयर का, ओके, अगेन कांस्टेंट हो गया। सो वी कैन से that the electric field is inversely proportional to R. Got it friends? बेटा कैसे वेरिएशन होगा? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ कैसा होता है? इनवर्स वेरिएशन होता है। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता जाएगा। गॉट इट? समझ आ गई बात? नोट करें इसको आप। नोट करिए। डन? इसके बाद स्टूडेंट्स हेडिंग डालिए ग्राफिकल वेरिएशन, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ग्राफिकल वेरिएशन of electric field versus distance। ओके, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये वाला ग्राफ कॉपी करना है। से E be the magnitude of the electric field, it is plotted along the vertical axis, small r be the distance which is plotted along the horizontal axis। तो स्टूडेंट्स जब इनवर्स रिलेशनशिप होती है तो हमेशा हाइपरबोलिक कर्व्स मिलते हैं। ओके, हाइपरबोलिक कर्व्स याद रखें, लास्ट में यहां पे पैरेलल होना चाहिए, स्टार्टिंग में यहां पर पैरेलल होना चाहिए। एंड लेट अस सपोज दैट द ऑरिजिन। ओके बेटा, ये बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? ओके ठीक है, जल्दी से कॉपी करें।
Yes, sir, it's done. Okay. सर हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। अब हमें करना क्या है, अब हमें स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए जो हेडिंग है मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर और शेल से कंडक्टिंग शेल क्लियर। बेटा ये वाला फिगर जल्दी से कॉपी करिए। डन। नेक्स्ट लाइन में लिखें, कंसिडर द स्फेरिकल कंडक्टर और द कंडक्टिंग शेल over which the charge plus Q is uniformly distributed. Done? Okay. अब फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन में let vector E be the electric field due to the charged conductor or the charged conducting shell at the observation point. ओके इसके बाद फ्रेंड्स बेटा तीन पार्ट्स में काम करेंगे। अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कंडक्टर के एक्सटीरियर में लाई कर सकता है, बेटा कंडक्टर के इंटीरियर में लाई कर सकता है, या फिर कंडक्टर की सरफेस पे लाई कर सकता है। तो इन टोटल फ्रेंड्स 3 डिफरेंट केसेस होने वाले हैं और हमें तीनों के तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, कैसे डिराइव करना है, देखिए। ठीक है। Now, the case first. Observation point lies outside the charged conductor. बेटा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पे है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज आउटसाइड द चार्ज्ड कंडक्टर। तो सर स्फेरिकल कंडक्टर आ जाए या कंडक्टिंग शेल आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ओके, क्लियर, ओके। अब फिर से जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था, फिर से हमें क्या करना होगा, हमें स्वयं एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है जो जिसका शेप पहली बात रेगुलर हो, दूसरी बात गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकली एनक्लोज करें। अब क्योंकि स्वयं चार्ज प्लस क्यू स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एनक्लोज करने के लिए वी आर गोइंग टू कंसीडर द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ओके फ्रेंड्स, ओके, यस फ्रेंड्स, नोट कर लिया उसको, ये हेडिंग नोट कर लिया, मिटा रहा हूं मैं इसको क्योंकि मेरे को यहां पे गॉसियन सरफेस स्केच करना है। बेटा ये जो मैं कर रहा हूं ये दोबारा से नया फिगर है, उसी में मत करना, ये दोबारा से स्केच होगा। ओके, ऐसे करें।
व्हाट इट? अब बेटा ध्यान से देखिए, हमने एरिया एलिमेंट कंसीडर किया एट द पॉइंट ए ऑन द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। पहला काम क्लियर। दूसरा काम, एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर मार्क करना है। एरिया एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क करना है। अब सर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज रेडियली आउटवर्ड। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज से वेक्टर E and vector ds is the area vector of the area element which is marked at the point say A. And further let us suppose that say small r, let us suppose say small r be the radius of the spherical Gaussian surface. तो एक काम करें, ये डिस्टेंस स्मॉल, कॉपी करें इसको, डन। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट डी फाई be the small electric flux through the area element at the point A on the spherical Gaussian surface. Okay? Full stop डाले। The spherical Gaussian surface encloses the charge plus Q on the charged conductor and is concentric with the charged spherical conductor. Full stop डाले। Let small r be the radius of the Gaussian surface. Okay? अब ध्यान से देखिए, d phi is written as vector E dot vector ds again. Thus d phi is written as say E multiplied with ds multiplied with cos of 0 degrees. Why cos 0? Because vector ds and vector E, both of them they are in the same direction. So thus d phi is written as say E into say ds. Okay? फिर से स्मॉल फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। अब टोटल फ्लक्स की बारी आ गई। तो जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था, जब हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम केस अलग था, सिचुएशन अलग थी, अभी अलग है। लास्ट टाइम क्या था? लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था और उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में लेफ्ट वाला फेस था, राइट वाला फेस था, फ्लैट सरफेसेस थी। क्लियर? अब की बारी क्या है? अब की बारी हमारे पास में स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है? तो स्टूडेंट्स अब की बार टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्लोज्ड इंटीग्रल यूज करना होगा, क्योंकि हम पार्शियल कैलकुलेशन कर नहीं रहे। ठीक है? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, let phi be the total electric flux through the spherical Gaussian surface. So as phi, it will be the closed integral of say d phi. The flux phi is the closed integral of E into ds. बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट करना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल से बाहर, the closed integral of ds. The closed integral of ds means बेटा जितने भी एरिया एलिमेंट्स आपने गॉसियन सरफेस पे कंसीडर किए हैं, सारे एरिया एलिमेंट्स का एरिया ऐड करना है, मतलब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। बात समझ आ गई? So since the flux phi is written as say E
मल्टीप्लाइड विद 4 पाई आर स्क्वायर। तो जैसे लास्ट टाइम किया था, हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। लेट अस कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, नोट करिए, कॉपी करिए। यस सर, ऐसा। अब फिर से क्या करेंगे? फिर से स्टूडेंट्स हम वही करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था। अब की बारी बेटा हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है चार्ज एनक्लोज की टर्म्स में। दैट इज वी आर गोइंग टू यूज गॉस लॉ। नेक्स्ट लाइन में लिखें, यूजिंग गॉसस लॉ the flux phi is written as say charge enclosed divided by epsilon naught. The charged enclosed it is say plus q. Why? Because plus q was the total charge which was uniformly distributed on the surface of this charged conductor. Got it, sirs? So sirs, the flux phi can be written as say q divided by epsilon. We are going to call this as the equation number 5. Note it down. Done? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट। ओहो सॉरी, इसको सेकंड लिखिए, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड। वी गेट इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या मिलता है। हमें मिलता है E मल्टीप्लाइड विद 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज से Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। बात समझ आ गई? सो सर द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज रिटन एज से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब याद होगा आपको सिंस जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज किया था तब भी यही वाला एक्सप्रेशन था, KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो सर हमें यहां पर इस पर्टिकुलर केस में हमें फिर से वही वाला एक्सप्रेशन मिला। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे? यहां से हम एक बात कंक्लूड करेंगे कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इट विल बिहेव लाइक द पॉइंट चार्ज। क्लियर? हैश डाल के स्टेटमेंट वर्ड्स में लिखें, हैश डाल के लिखिए। पहली बात, चलिए स्टेटमेंट बाद में दे दूंगा। तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज Q कांस्टेंट है, तो वी कैन से दैट द E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। अब वो स्टेटमेंट लिख लेना, फ्रॉम द above we conclude that when the observation point lies outside the charge distribution, it behaves like the point charge. It behaves like the point charge. नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, when the observation point lies in the exterior of the charge distribution, then students it is the expression of the electric field. Got it? Okay. Now since we will discuss the second case, and in this case the observation point is present in the interior of the charged conductor. ठीक है?
Case second, the observation point lies in the interior of the charged conductor. The observation point lies in the interior of the charged conductor. Since copy this figure, plus Q was the charge which was uniformly distributed over the surface of the charged conductor, and let us suppose, say, the observation point is the point P. Observation point is the point P. Clear? Okay. Now since its area vector is supposed to vector ds. Area vector is supposed to vector ds. अभी स्टूडेंट्स देखिए, गॉसियन सरफेस के इंटीरियर में तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है और हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इंटीरियर में तो कोई चार्ज था नहीं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं मार्क नहीं कर पाऊंगा. ओके, अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट डी फाई be the small electric flux through the area element at the observation point B on the Gaussian surface, on the spherical Gaussian surface in the interior of the charged conductor. So since d phi is written as, say, vector E dot vector ds, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पता नहीं था, अब पता नहीं है तो स्टूडेंट्स मैं इसको आगे तो रिड्यूस कर नहीं सकता. बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट फाई बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस. Let phi be the electric flux through the Gaussian surface which is present in the interior of the charged conductor. So since to calculate that total flux, we can say that it is written as say the closed integral of d phi. So since the flux phi is written as the closed integral of वेक्टर E डॉट वेक्टर ds. बेटा ये सिंपल सी बात समझ आ गई, इतना काम क्लियर हो गया. ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, this flux phi is written as a charged enclosed divided by epsilon naught. Now since the charge enclosed it is 0. ध्यान से देखिए फिगर में, सारा का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है, सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है. चार्ज enclosed by the गॉसियन सरफेस तो 0 है. So since what we can say that the flux phi is equal to 0. बेटा चार्ज enclosed का वैल्यू यहां पे डालेंगे. Got it students? ओके, डन. कॉपी करें जल्दी से, मुझे मिटाना पड़ेगा इसको. चलिए, मिटाता नहीं हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, मैं इधर कर देता हूं. This implies that the closed integral of the electric field along the Gaussian surface it is equal to 0. अब बेटा ध्यान से देखिए, वेक्टर ds तो 0 था नहीं, ठीक है, और अगर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds का क्लोज इंटीग्रल 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0.
दिस इंप्लाइज दैट, चलिए दिस इंप्लाइज की जगह ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, since this ds is not equals to 0, this further implies that this vector e is equals to 0. This implies that vector e is equals to 0. So from it we conclude that the electric field is 0 in the interior of the charged conductor. Clear? From the above we conclude that the electric field is 0 in the interior of charged conductor. बात समझ आ गई? नोट करें, नोट करिए। नोट करिए। Yes, sir. Now the last case, the third case. Now the last case, the third case. Case third, the observation point lies on the surface of charged conductor. अब बड़े ध्यान से देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर में 0 और एक्सटीरियर में तो था, लेकिन डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जा रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम ऑन द सरफेस। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम on the surface of the charged conductor. क्लियर? देखिए सेकेंड केस में पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर में तो 0 है, एक्सटीरियर में जहां कहीं भी होगा 0 तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा था। डिस्टेंस किसका? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब बेटा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है, मैक्सिमम किधर होगा? सरफेस पे। क्लियर? सो से फॉर द सरफेस और से the observation distance of the first case, it is say smaller, and thus E it will be equals to maximum. Clear? तो सिर्फ ये दोनों वैल्यूज केस फर्स्ट के रिजल्ट में डालते हैं तो क्या मिलता है? E maximum is written as say 1 upon say 4 pi epsilon naught into q divided by capital R square. बेटा ये सिंपल सी बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स ये 3 पार्ट्स में डेरिवेशन की जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो या तो लाइन चार्ज आता है या फिर ये आता है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। और जब भी ये आएगा या तो 3 मार्क्स में आएगा या फिर 5 मार्क्स में आएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? मैक्सिमम चांसेस रहते हैं 3 और 5 के। 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स के लिए काफी लेती है। डन? कॉपी कर ले इसको, जल्दी से कॉपी करिए। ओके, नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स इसी का पार्ट है। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए ग्राफिकल वेरिएशन। ग्राफिकल वेरिएशन of electric field due to charged conductor
वर्सेस डिस्टेंस। स्टूडेंट्स ये ग्राफिकल वेरिएशन स्केच करें। यहां पर ओरिजिन रखें, यहां पर हाईलाइट करें, बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्लॉटेड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है। सपोज से यहां पर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर का वैल्यू डालें। बोले स्मॉल आर यहां पर प्लॉटेड है हॉरिजॉन्टल के लॉ, इस वाले पॉइंट के सामने और इस वाले पॉइंट के सामने। अब ओरिजिन और इस वाले पॉइंट के बीच में जितने भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट होंगे वो इंटीरियर के पॉइंट्स होंगे। इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो ये डॉटेड लाइन रखनी है, ये डॉटेड लाइन रखनी है। समझ आ गई बात? फिर यहां से इनवर्स रिलेशनशिप बता दें, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कॉपी करें, ठीक है? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कॉपी कर लें। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे। Rest of the derivations we will discuss in the next lecture. Okay.